Hello and welcome. Welcome to the second learning session of fifth chapter in geometry, which is coordinate geometry. Before we actually begin our learning session, let us quickly discuss what were the answers to the practice questions given in the last learning session. So you were asked to find the distance between AB and distance between MN, right? So let us start with AB. So let me first write the coordinates of point AB. So what is the x coordinate of A? So if you put a perpendicular from A on x axis, it is meeting the x axis at 4. So x coordinate of A is 4. What is y coordinate of A? It is also 4, right? When you draw a perpendicular from point A on the y axis, the line joins, the perpendicular touches the y axis on 4. So x coordinate 4, y coordinate 4. Similarly for B, the x coordinate is -3 and y coordinate remains the same, 4. So what is same over here? The y coordinate is same for both of them, right? For both of them y coordinate is same, it is 4. So what you will do, ignore the y coordinate and just subtract the x coordinate, bigger number minus smaller number, right? So distance AB is equal to, bigger number is 4, smaller number is -3. So 4 minus -3. So minus into minus plus, so 4 plus 3, and that becomes 7. So your answer here was 7 units. Okay, make sure you're writing units as well. We don't know if this is centimeter, meter, kilometer, so you'll just write units. Now for distance MN, so again what we'll do is we'll first write the coordinates. M is over here. So what will be its x coordinate? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x कोऑर्डिनेट पे, तो कहाँ पे टच हो रहा है 0 पे, राइट? सो x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट y पे कहाँ पे टच हो रहा है 6 पे, सो y कोऑर्डिनेट इज 6. सिमिलरली फॉर n ओवर हियर, x कोऑर्डिनेट यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस पे 0 पे टच हो रहा है, y कोऑर्डिनेट y पे कहाँ पे टच हो रहा है -5 पे. सो अगेन यू विल नोटिस that x coordinate is same over here, right? यहाँ पे y coordinate same था, यहाँ पे x coordinate same है, तो x coordinate is same, so you'll ignore them and you'll just subtract the y coordinates, bigger number minus smaller number. So let us do that. Distance mn. So distance mn will be, बिगर नंबर कौन सा है? 6 is the bigger number, -5 is the smaller number. तो 6 minus of -5, so 6 plus 5, that is 11 units. So these were your two answers. Okay, just check whether you have solved it correctly, just check whether you have put signs correctly, and if you have put the unit, this word unit should come after the number. Okay. Now that we are done with this, we can move on with our learning session. Okay, for now, I want you to consider this graph and consider point A and B. Now, if I ask you to find the distance between point A and B, how will you find? Right? Obviously, one way to find the distance is just put the scale over here and find the distance between the two of them. But without knowing the scale, just using the numbers, just using the coordinates, how will you find the distance between the 2 points? So just check their x coordinates first. Here the x coordinate is 2, here it is -6, so it is not the same. So you can't ignore x coordinate and just subtract y coordinate. The y coordinate, let us check that. Here it is 5, here it is -2. Again, y coordinates are also not same. Till now, whatever sums we have seen, whatever points we have seen, either the x coordinate was equal or the y coordinate was equal. So one coordinate we used to ignore and the remaining coordinates we used to subtract, and we used to get the distance between the 2 points. But यहाँ पे x coordinate भी equal नहीं है, y coordinate भी equal नहीं है. So how will you find the distance between these 2 points? So to find the distance between such points, you have the distance formula. Okay. So let us see what is the distance formula. First, instead of writing 2,5, let me write a general formula. Instead of here, let me write x1, y1. Okay, what is my A? x1, y1. Similarly, let me put variables for point B as well. So point B को मैं लिख रहा हूँ, point B के coordinates में assume कर रहा हूँ x2, y2. Okay,
वो जो 1 1 है और 2 2 है उसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ. ओके, सो अगर मेरा पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 एंड बी इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, इनका बीच का डिस्टेंस ढूंढने के लिए फॉर्मूला ढूंढना होगा या फिर लिखना होगा. सो दिस विल बी माय फॉर्मूला. डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा sorry for that, distance between A and B is equal to, okay, first what you will do is first you will do x2 minus x1. Okay, so my x2 is in red and my x1 is in blue. Right, what I have done, I have done x2 minus x1, दोनों के x कोऑर्डिनेट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस साइन डाल दिया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं उसका स्क्वायर ले रहा हूँ. ओके, आई हैव डन इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट एंड फिर उसको स्क्वायर कर दिया. देन प्लस आई पुट प्लस साइन इन बिटवीन एंड डू द सेम थिंग फॉर y कोऑर्डिनेट्स नाउ. सो यहाँ पे x2 माइनस x1 आ गया, तो सिमिलरली वहां पे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1. ओके, यस. सो अब तक मैंने क्या किया, दोनों के x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 आ गया एंड दोनों के y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए, y2 माइनस y1, वो यहाँ पे आ गया. सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया. ओके, आई हैव टेकन स्क्वायर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम एंड बीच में प्लस साइन डाल दिया. लास्ट एक स्टेप रह गया, ये सब करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है. ओके, सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला. वन क्वेश्चन इज x2 माइनस x1 ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर x1 माइनस x2 कर लिया तो क्या होगा. सो द आंसर इज कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीच उसको बाद में स्क्वायर करना ही है. राइट, तो अगर समझो तुमने 2 माइनस 3 कर दिया तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है. 3 माइनस 2 कर दिया फिर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है. सो इट डज नॉट रियली मैटर, बट फॉर्मूला में ऐसा ही लिखो तुम लोग. वी डोंट वांट टू लूज मार्क्स इन फॉर्मूला. राइट, सो फॉर्मूला में हमेशा 2 पहले 1 बाद में. और अगर समझो तुमने इसको x2 x1 लिया होता, सॉरी इसको तुमने x1 y1 लिए, a को हमने x1 y1 अज्यूम किया. राइट, तो a को x1 y1 अज्यूम करने की जगह पे x2 y2 अज्यूम कर लिया होता और इसको x1 y1 अज्यूम कर लिया होता, उल्टा कर लिया होता, तो भी आंसर सेम ही रहता. इट वुड नॉट चेंज. राइट, so just keep that in mind. किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, बट एक बार वो फिक्स कर दिया उसको चेंज नहीं करना है तुम्हें. ओके, so here you can see, right, मेरा x2 minus 6 है, y2 minus 2 है, x1 2 है, y1 5 है. So I'll just substitute in this formula now. So let us start substituting. पहले x2 minus x1, x2 क्या है, minus 6, तो minus 6 minus 2, minus 6 minus 2, इसका स्क्वायर करना है मुझे, प्लस y2 minus y1, y2 क्या है, minus 2, माइनस y1 क्या है मेरा 5. सो जस्ट सी हाउ आई एम पुटिंग ब्रैकेट्स, क्योंकि मुझे पता है बीच बीच में काफी माइनस साइन आने वाला है. सो मैं 2 टाइप्स के ब्रैकेट्स यूज करता हूँ, एक है राउंड ब्रैकेट्स, दूसरा है स्क्वायर ब्रैकेट्स. राउंड ब्रैकेट्स ये अंदर वाले माइनस साइंस को अंदर रखने के लिए एंड राउंड ब्रैकेट्स को स्क्वायर के लिए, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वायर के लिए. ओके, सो minus 6 minus 2, व्हाट इज minus 6 minus 2, इट इज minus 8, minus 8 the whole square, plus minus 2 minus 5, minus 2 minus 5 is minus 7, so minus 7 the whole square. So minus into minus is plus, right? So ये minus साइन निकल जाएगा स्क्वायर करने के बाद. So minus 8 into minus 8 will be 64, plus 7 into 7 is 49. What is the thing which I am forgetting? स्क्वायर रूट कहीं पे भी नहीं डाला है, तो स्क्वायर रूट डालते रहना. ओके, सब जगह पे स्क्वायर रूट आएगा. तो 64 प्लस 49, व्हाट इज 64 प्लस 49, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10, यहाँ पे 11 आ जाएगा. ओके, यू कैन कीप इट एज इट इज, या फिर तुम इसको थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हो. ओके, यू कैन कीप इट एज इट इज और इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो. सो वी गोना कीप इट एज इट इज, पुट द यूनिट्स. ओके, यहाँ पे कोई यूनिट्स दिए नहीं है, सो विल जस्ट राइट यूनिट्स. सो दैट्स योर डिस्टेंस बिटवीन ए बी. You have to remember this formula. Make sure you're copying this formula in your notebooks and remembering this formula. It's an important formula in this chapter. Okay, now that we know what distance formula is and now that we know how to use the distance formula, now we can start solving sums in the
practice set. Okay, so let us look at our objectives for today. So the first objective says students will be able to find distance between 2 points using distance formula. So we have learnt distance formula, and question number 1 of practice set 5.1 is about finding distance between any 2 points using distance formula. Okay, so we'll do that. The first sum, which is the second sum, I'll do it completely. You'll only have to pay attention. The next sum which I'll do, sixth sum, you'll try by yourself, and if you are unable to solve it, only then look at my solving, how am I solving, and what mistakes you are making. And remaining sums, there are total 6 sums in question number 1. Remaining sums you all will solve by yourself. Okay. Next objective for today is students will be able to determine if the given points are collinear or not. Okay, 3 points दिए होंगे और वो collinear है. collinear यानी same line पे lie करते हैं कि नहीं, वो determine करना. That's second part of the question. So that we'll see after completing this. Okay, so those two are your learning objectives for today. So let us begin with the first one. I'm solving the second question of the first main question of practice set 5.1. So the given points are P and Q. तो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला में x1, x2, y1, y2 होता है, राइट. तो पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा x1, x2 हम क्या ले रहे हैं, y1, y2 हम क्या ले रहे हैं. सो लेट मी फर्स्ट राइट, लेट p को मैं x1, x2 ले रहा हूँ, सॉरी x1, y1 ले रहा हूँ, एंड q जिसको मैं x2, y2 ले रहा हूँ. ओके, बी द गिवन पॉइंट्स. ओके, क्योंकि हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला में हम x1, y1, x2, y2 यूज करते हैं, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y2 है. ओके, सो इसकी वजह से अभी x1 क्या हो जाएगा, सी p का x कोऑर्डिनेट हमने x1 लिया, सो p का x कोऑर्डिनेट क्या, -5, सो इट इज -5. y1, व्हाट इज y1, p का y कोऑर्डिनेट इज y1, सो p का y कोऑर्डिनेट 7 है. नेक्स्ट x2, q का x कोऑर्डिनेट x2 है, सो q का x कोऑर्डिनेट -1, एंड y2 इज q का y कोऑर्डिनेट, q का y कोऑर्डिनेट इज 3. सो पहले अज्यूम कर लो क्या x1 x2 है, y1 y2 है, एंड देन राइट व्हाट इज x1 y1 x2 y2. ओके, नाउ यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला के अलग मार्क्स होते हैं किसी भी सम में. सो इट इज द फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, and taking the square root of the whole thing. Now substitute what is x2 minus x1. x2 है -1, ओके, -1 माइनस x1 क्या है, -5, एंड इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल रहा हूँ और इसका स्क्वायर, प्लस y2, व्हाट इज y2, y2 इज 3, माइनस y1 क्या है 7, 3 minus 7, और इसका स्क्वायर, एंड पुट दिस इन स्क्वायर रूट. ओके, नाउ सॉल्व दिस. यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पे +5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे -1, +5 -1, +5 -1 इज 4. सो हियर यू विल गेट 4 स्क्वायर प्लस 3 minus 7, 3 minus 7 will be -4, right, -4, and -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 into -4 is +16. So here actually यहाँ पे 4 स्क्वायर लिखा है, right, so let me write -4 square over here, -4 square इसका स्क्वायर रूट. ओके, सो 4 स्क्वायर क्या है यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 4 into -4 16, तो ये कितना हो जाएगा 32. इसको अब तुम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो. ओके, हाउ कैन यू सॉल्व, इसके फैक्टर्स निकालो. 32, तो 32 के फैक्टर्स निकालो. पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 6 आ गया. फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट. तो यहाँ पे 1 2 3 टोटल 5 2 आएंगे. ओके, so I can write 2 into 2 into 2 into 2 into 2. जो कोई भी नंबर अंदर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट के
साइन के बाहर आके एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, वो बाहर आके एक बार, यहाँ पे भी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, बाहर आके एक बार, ये अंदर का अंदर ही रहेगा लास्ट वाला 2। सो एक 2 को बाहर ले लो। लेट मी डू दिस ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, डिस्टेंस क्या है, पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आएगा। एक्चुअली लेट मी राइट डू दिस हियर इटसेल्फ। एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड पे एक और 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा, 2। तो ये जो अंदर 2 बार 2 मल्टीप्लाई किया गया था, दैट केम आउट एंड बिकेम 1। यहाँ पे अंदर जो 2 बार मल्टीप्लाई किया था, दैट केम आउट एंड बिकेम 1, और ये वैसे का वैसा रह गया। ओके, दैट्स हाउ यू सिंप्लीफाई एनीथिंग विच इज गिवन इनसाइड स्क्वायर रूट, फैक्टर्स निकाल के। ओके, सो क्या मिल गया हमें, 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4, 4√2 आ जाएगा आंसर। सो आंसर विल बी 4√2 units. How will you write the answer? Always write the answer in complete sentence. The distance between point P and Q is 4√2 units. Okay, मैंने बहुत गंदे हैंड राइटिंग में लिखा है, तुम लोग थोड़े अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लो। Okay, so that's your final answer. Put that in pencil box. Okay, and that's your answer. So we are done with the second question. Second question, I hope you all completely paid attention as to how I was writing. कैसे तुम्हें पहले assume करना है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, फिर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स के एक्चुअल वैल्यूज लिखने हैं, फिर लिखना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल आंसर, sorry, calculate करने के बाद final answer in pencil box. That's how you solve this type of sum. Now you're done with the first sum that I was going to solve. Now the second sum I wanted to try by yourself. Second कौन सा करना है, sixth sum. Question 1 का sixth sum खुद से solve करने की कोशिश करो. If you are stuck, then you can watch this. Watch how I am solving. Okay. So till the time I am erasing the board, what I want you to do is start solving the sixth sum. Okay, pause the video and solve the sixth sum. Okay, I hope you have already paused the video and are ready with the answer. Okay, and if you are not able to get the answer, now you all can pay attention. But I hope you have already tried. पहले खुद से try करो इस sum को solve करने के लिए, फिर ही देखो मैं कैसे solve कर रहा हूँ. If you are able to get the correct answer, you will feel much more confident कि हाँ मुझे आता है. And if you are unable to get the answer after watching how I am solving, you'll understand where you are making the mistake. So make sure you are trying to solve this sum first. Okay. So sixth sum, same first step. Let W x1 comma y1 and x2 comma y2 be the given points. Okay, then we write x1 x2 y1 y2 के वैल्यूज, राइट. x1 है w का x कोऑर्डिनेट है -7/2. y1 है w का y कोऑर्डिनेट विच इज 4. then x2 is x का x coordinate 11 and y2 is x का y coordinate which is 4. So now by using distance formula, use the formula, write the complete formula. Distance between w and x is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, and इसको square root sign में डाल दो. Okay, now you start substituting. x2 minus x1, x2 क्या है, 11 है, so 11 minus of 7/2. Okay, इसका square plus y2 minus y1 is 4, y1 is 4, so यहाँ पे आ जाएगा 4 minus 4.
सो एक्चुअली हम इसको एक सिंपल वे से भी सॉल्व कर सकते थे, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, राइट? सो व्हेनेवर द y कोऑर्डिनेट इज सेम, यू जस्ट सबट्रैक्ट द x कोऑर्डिनेट, सर तुम्हें आंसर मिल जाता है, राइट? तो तुम उस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी कंडीशन के लिए अप्लाई करेगा, किसी भी दो पॉइंट्स के लिए अप्लाई करेगा। ओके, पुट द स्क्वायर रूट साइन। नाउ 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 11 माइनस ऑफ -2, तो ये 11 प्लस 7/2 हो जाएगा। नाउ हाउ डू यू ऐड फ्रैक्शंस? जब भी तुम्हें फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, दैट डिनोमिनेटर हैज टू बी सेम, राइट? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो इस 1 को तुम्हें 2 बनाना है, तो तुम क्या करोगे? डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बट ऐसे अपने मन से डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द सेम नंबर, सो तुम्हें ये करना पड़ेगा। हाउ डू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस? यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, यू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, ओके? और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर हो रहा है। यहाँ पे इसका स्क्वायर है एंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ओके? नाउ डू दिस कैलकुलेशन। सो 2 11 का क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सो 22 नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 था, सो 22 प्लस 7 द होल डिवाइड बाय 2। इसका भी डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, तो तुम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो। तो 22 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर। एक्चुअली स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हो ना तुम, जिसका स्क्वायर ले रहे हो फिर बाद में स्क्वायर रूट ले रहे हो, वो कैंसिल हो जाता है। सो से फॉर एग्जांपल 3 का तुमने स्क्वायर ले लिया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या मिलेगा तुम्हें? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। सो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, ओके? और सिर्फ अंदर का नंबर वैसे का वैसे मिलता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर अंदर और बाहर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल्ड, ओके? सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज बच जाएगी। सो व्हाट इज 22 प्लस 7? 22 प्लस 7 इज 8 31 by 2. Let me check the answer. Okay, I've made a small mistake. 31 नहीं 29 होगा यहाँ पे, that's the only mistake. So this is 29 by 2 units. Okay, so is my sum done over here? The answer is no. We haven't put the final answer in pencil box yet. So final answer को statement form में लिखो. The distance between W and X, points W and X, okay? Distance between points W and X is 29 by 2 units. If you want, you can also convert this into point, okay? 29 by 2 क्या होता है? 29 by 2 समझो 28 था, तो 14.5 हो सकता है, तो उसको 14.5 भी लिख सकते हो, 29 by 2 भी लिख सकते हो। So that's your answer. यहाँ पे ट्रिक क्या था कि ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है। अगर ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर वो तुमने ध्यान से किया होता तो काफी इजीली आंसर मिल गया होता। ओके, सो वी आर आल्सो डन विद द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। So we are done with the first part of our practice set 5.1, right? There were 6 total questions. The second sum I solved it for you all. You all only watched how I was solving that question. Then the 6th question you all tried by yourself. If you all got the correct answer in the first attempt, that's great. If you all did not get the correct answer when you tried it by yourself, then you all again watched how I am solving the sum, and then you all must have corrected your mistake. So now remaining 4 sums you will have to solve by yourself of main question number 1 of practice set 5.1. When you submit your notes, I should be able to see all 6 questions in question number 1. Okay, and after doing that, you will be expert at finding distance between 2 points using distance formula. Now we are moving on to the second main question, which says determine if the given points are collinear or not, and that's also our second learning objective for today, right? Students will be able to determine if the given points are collinear or not. What is the meaning of collinear? Collinear यानी same line पे lie करके।
अगर पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं तो हम बोलेंगे वो कोलिनियर है, अगर सेम लाइन पे नहीं लाई करते we say that they are non-collinear. Okay, so let us begin with the first question. We again going to follow the same pattern. First question I'll solve completely for y'all, and the second sum y'all will try by yourself, and in between I'll help you a little and you can correct your mistakes there. Okay, so let us begin with the first question. They have given you 3 points, point A, B and C. Okay, and they are asking if they are collinear or not. What you will do is, how will you determine कि वो लोग एक लाइन पे लाई करते हैं या नहीं? So let me draw a rough diagram to explain that. Okay, so let's say if this is my point A, this is B and point C. तो अगर A, B and C तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं तो AB plus BC क्या आएगा? If A, B and C are on the same line, what will be AB plus BC? That is my question. The answer is obviously it will be AC. Let me show that with colors. Okay, so AB plus BC क्या आ जाएगा? AB plus BC आ जाएगा AC, isn't it? अगर ये तीनों सेम लाइन पे लाई करते हैं तो ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें पहले AB फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर BC फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर बाद में मुझे AC फाइंड आउट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा AB plus AC, सॉरी AB plus BC AC आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, अगर आ गया तो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, अगर इक्वल नहीं आया तो वो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन. क्योंकि अभी इसमें मुझे 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तो मुझे स्टार्टिंग का लाइन लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, बट डू राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. ओके, सो आई एम गोइंग टू लीव सम स्पेस ओवर हियर and you'll understand why I'm leaving some space over here at the end of the sum. Okay, so by, okay, wait, let me use a red color. Yeah, by using distance formula, ओके पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? AB, डिस्टेंस AB. सो डिस्टेंस AB विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर. सो पहले मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, राइट, कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y1 है, कौन सा y2 है. सो लेट मी अज्यूम दिस एज x1, दिस एज y1, x1 y1 and this as x2 and y2. Okay, you can do this in your answer sheet. मेन आंसर शीट में तुम लोग ये पेंसिल से लिख सकते हो या फिर रफ कॉलम में ऐसा लिख सकते हो. ओके, ताकि तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देते हैं. ओके, सो ये x1 y1, ये x2 y2. नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्विंग. सब्स्टिट्यूट x2 क्या है मेरा? 2 माइनस x1 क्या है मेरा? 1, 2 minus 1 the whole square plus y2 minus y1, minus 5 minus of minus 3, so minus 5 minus of minus 3 the whole square, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर. so 2 minus 1 क्या हो जाएगा? 2 minus 1 will be 1 square. यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा तो minus 5 plus 3, minus 5 plus 3, two numbers opposite sign, subtract them and give the bigger number sign. so 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2. बड़ा नंबर कौन सा है? 5, उसका साइन माइनस था तो -2 हो जाएगा. सो -2 द होल स्क्वायर, एड बोथ ऑफ देम एंड स्क्वायर रूट. 1 स्क्वायर क्या होता है? 1. -2 स्क्वायर इज 4. -2 into -2 is 4. स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 4 is स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओके, सो आई एम डन विथ माई फर्स्ट वन. AB फाइंड आउट कर लिया, अभी BC फाइंड आउट करना है. ओके, तो अगेन BC के लिए मुझे x1 y1 x2 y2 लेना पड़ेगा. So let me take this as x1 y1 and this as x2 y2. Okay, again I'll write the formula. Distance BC is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, again substitute x2 क्या है? -4. so -4 minus x1 क्या है? 2. so -4 minus 2 the whole square plus y2 is 7, y1 is -5. so 7 minus of -5 the whole square. make sure you are putting the signs correctly. एक माइनस साइन ये वाला है. ओके, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे आ गया. और y1 क्या है?
y1 is -5, इसलिए उसको ब्रैकेट में डाला है. If you make any sign mistake, then you're going to get the wrong answer. So you have to be very careful about the signs. The more sums you practice, the more natural it will become. Okay? इसको स्क्वायर रूट में ले लो. -4 -2 is -6 the whole square plus यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 + 5, 7 + 5 is 12. तो 12 स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट में ले लो. So here you are getting 6 6 are 36 plus 12 12 are 144. So here you are getting square root of 180. Right? 144 plus 36 is 180. Okay? But तुम्हें square root of 5 के terms में चाहिए, right? So let's factorize this. Okay, let's factorize this. Square root of 180. This is my rough column. Square root नहीं, factors of 180. Okay, so पहले कौन से नंबर में जाएगा? 2 में. So 2 9s are 18, 0 वैसे का वैसे, 2 45s are 90. फिर 5 में जाएगा, एक्चुअली 3 में जाएगा. So 3 1s are 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5s are 50, वापस 3 में, 3 5s are 15 and 5 वैसे के वैसे. Okay, so let me do that calculation over here. Distance BC is equal to square root of 180 लिखा था वहां पे. square root of 180 के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 2 into 2 into 3 into 3 into 5. जो कुछ भी अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आके एक बार, सो 2. वापस 3 अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आके एक बार, सो 2 into 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे का वैसा, क्योंकि वो अकेला है. ओके, बेचारा अकेला अंदर रह गया, बाकी सब बाहर आ गया. सो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओके, नाउ लेट अस फाइंड AC. ओके, फाइनली यू विल फाइंड डिस्टेंस AC. AC के लिए मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ और इसको x2 y2 ले रहा हूँ. ओके, सो डिस्टेंस AC is equal to, again I'll write the formula, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. तो अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सम्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 सम्स खुद से कर लो, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक सम में तुम्हें 3 बार यूज करना पड़ रहा है. सो इतनी बार तुम फॉर्मूला लिख लोगे कि अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा. इफ यू इवन सिंसियरली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द प्रैक्टिस सेट. ओके, लेट अस स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग नाउ. x2 minus x1, x2 यहाँ पे -4 -1, -4 -1 the whole square plus y2 7 y1 -3, 7 -3, 7 minus of -3 the whole square, everything under square root, right? -4 -1 is -5 the whole square plus 7 plus 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर आ जाएगा सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर. 5 5s are 25 प्लस 10 into 10 is 100, so 125 आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 125, अगेन यू हैव टू फैक्टराइज 125 के फैक्टर्स. तो ये पहले 5 में कर लो. 5 2s are 10, 2 कैरी फॉरवर्ड एंड 5 5s are 25, करेक्ट. देन अगेन 5 5s are 25 एंड अगेन 5 1s are 5, वापस 5 अंदर अकेला बच जाएगा. सो ये आ जाएगा 5 into 5 into 5. सो ये बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा 5√5. नाउ व्हाट डू विल डू, हमने क्या कर लिया, हमने AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, AC निकाल दिया, राइट. सो AB हमें क्या मिला है, AB यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 5. BC कितना मिला है, BC यहाँ पे 6√5, 6√5. ओके, एंड AC कितना मिला है, AC मिला है 5√5. तो हमें क्या चाहिए था, AB प्लस BC AC चाहिए था. सो AB क्या है 5√5, BC है 6√5. 5√5 प्लस 6√5 7√5 आना चाहिए था, बट मिला क्या 5√5. सो आर दीज पॉइंट्स कोलिनियर? नो, राइट, नो, हमने एक गलती किया है. ओके, बिकॉज इफ यू नोटिस वन थिंग, ट्राई टू नोटिस वन थिंग. ओके, see over here,
स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड यहाँ पे 5√5, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके क्या मिलता है 6√5, isn't it? इन दोनों को ऐड करके 6√5 मिलता है. लेट मी डू दैट, लेट मी राइट दैट अगेन अ लिटिल नीटली. सो अगर तुमने 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 √5 प्लस 5√5 कर दिया तो तुम्हें 6√5 मिल जाएगा, राइट? एंड वो सेम 6√5 तुम्हें यहाँ पे मिला. ओके, तो एक्चुअली 5√5 प्लस √5 तुम्हें 6√5 मिला है, तो एक तीसरा क्वांटिटी हमें मिल रहा है. सो एक्चुअली ये तीनों कोलिनियर है, बट हमने यहाँ पे क्या गलती कर दी, हमने अज्यूम कर लिया कि बी सेंटर में है, बट बी सेंटर में नहीं है. तो डायग्राम, द करेक्ट डायग्राम, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा है. ओके, सो द करेक्ट डायग्राम इज ए सेंटर में है. ओके, ए इज एट द सेंटर एंड बी एंड सी आर ऑन द एजेस. ओके, तो ए बी हमें क्या मिला था, ए बी हमें मिला था स्क्वायर रूट ऑफ 5. ए सी कितना मिला है, ए सी इज 5√5 एंड बी सी क्या मिला है 6√5, दोनों को मिला के 6√5. तो हो गया ना फिट. 5√5 सॉरी √5 प्लस 5√5, √5 प्लस 5√5 यू कैन थिंक ऑफ x प्लस 5x. x प्लस 5x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा. वैसे ही √5 प्लस 5√5 6√5. तो हो गया, ठीक से फिट हो गया. तो हमें मिल रहा है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, राइट? सो हमने अज्यूम कर लिया था कि बी सेंटर में है, बट यू कैनॉट अज्यूम दैट. ओके, तो ये हमेशा याद रखो, मैंने जानबूझ के वो गलती की थी ताकि तुम लोग ये गलती वापस ना करो. अज्यूम मत करो कि सेंटर में कौन सा पॉइंट आने वाला है. जस्ट फाइंड ऑल 3 डिस्टेंसेस, और जो 2 छोटे डिस्टेंसेस होंगे उनको ऐड करके बड़ा डिस्टेंस बना दो. ओके, चेक करो कि बड़ा डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं. व्हाट आर द 2 स्मॉल नंबर्स यू गेट, ऐड देम एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द थर्ड नंबर, द थर्ड डिस्टेंस दैट यू फाइंड, टू फाइंड इफ दे आर कोलिनियर और नॉट. ओके, so the answer is yes, they are collinear. How will you write that? You need to write that correctly, right? So I'll erase this part and write it here. Okay, so I'll write distance so I'll write distance AB प्लस डिस्टेंस AB के बाद AC इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5√5 विच विल बी इक्वल टू 6√5. इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC तुम्हें क्या मिल रहा है, डिस्टेंस BC, because distance BC is 6√5, isn't it? So क्योंकि अभी हमें ऐसा मिल रहा है, what we can write is, we can write that points A, B and C are in the same line, lie in the same line. So points A, B and C are collinear. Okay, collinear यानी they lie on the same line, and you'll put that in a pencil box. And that's your final answer. Okay, so this is your first part, this is your second part, third part and the final part. This is how you find if 3 points are collinear or not. तुम्हें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद चेक जो 2 छोटे नंबर्स है उन दोनों को ऐड करके तुम्हें बड़ा नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. अगर बड़ा नंबर मिल गया, इट मीन्स दैट ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी वो सेम लाइन पे लाई करते हैं. ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट सम. सो फर्स्ट सम आई हैव सॉल्व्ड completely for you all, and I hope you all have understood how to solve this. Okay, now let's move on to the second sum. So second sum, as I told you, I'm not going to solve it for you, you have to solve it by yourself. I'm going to just help you in between. So by the time I erase this board, pause the video here and try to solve the second sum completely. पूरा sum solve करने के बाद वापस play करो and then you can see what I'm doing on the board. Okay, I'm not going to solve it on the board anyway, so you have to solve it by yourself.
Okay, I hope you paused the video while I was erasing the board and you have attempted to solve the second question. If you are able to get the correct answer, that's great. If you are unable to get the correct answer but you tried, now you will see where you made mistakes and you will improve now. Okay, so now let us see the second question. As I told you, I'm not going to solve the entire sum. So पहले तुमने LM find out किया होगा, distance LM. So distance LM. So you must have got square root of 45. Okay, ये तुम लोग खुद से आ जाना चाहिए. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत बार यूज कर लिया, तुम्हें काफी प्रैक्टिस भी हो चुका है. जस्ट चेक तुमने फॉर्मूला करेक्ट से सब्स्टिट्यूट किया है, x1 y1 x2 y2 ठीक से अज्यूम करके सब्स्टिट्यूट किया और साइंस का ध्यान रखा है कि नहीं. If you have done that correctly, this should not be a problem. Okay, so square root of 45, let us find factors. So square root of 45, right? So 45 के factors, ये 5 में जाएगा, 5 से पहले 3 में जाएगा, right? 3 में 3 ones are 3, 1 carry forward, 3 5s are 15, then again 3 5s are 15, then 5 अकेला रह जाएगा. So ये क्या हो जाएगा? 3 into 3 into 5, 3 into 3 into 5. So 3 अंदर 2 बार है, बाहर आके 1 बार हो जाएगा, 3 root 5. तो ये आ गया LM. नेक्स्ट तुमने फाइंड आउट किया होगा MN. ओके, डिस्टेंस MN. अगेन रिमेंबर यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला एवरी टाइम. डिस्टेंस फॉर्मूला को लिखो 3 बार, अलग अलग बार, उसके अलग मार्क्स होते हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन सब्स्टिट्यूट फिर तुम लोग ठीक से कर पाओगे. ओके, MN तुम्हें मिला होगा रूट 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65. अगेन लेट्स फैक्टराइज दिस 65. तो ये 5 के टेबल में ले लेते हैं. 5 1s are 5, 1 कैरी फॉरवर्ड. सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 1s are 5, राइट? 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3s are 15, फिर 13 को और आगे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, so 13 वैसे के वैसे रह जाएगा. So 13 1s are 30. So you will get square root of 5 into 13. Okay, so this will be, इसको एक्चुअली तुम कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, तो इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 65 ही रहने दूंगा. कोई भी नंबर अंदर 2 बार नहीं आ रहे जिसको मैं बाहर लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकूं, तो इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 65 रखूंगा, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा आगे. एंड फाइनली यू मस्ट हैव फाइंड आउट LN, डिस्टेंस LN. डिस्टेंस LN तुम्हें कितना आया होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 50. स्क्वायर रूट ऑफ 50. अगेन लेट्स फैक्टराइज 50. ये जाएगा 5 के टेबल में, 5 10s are 50, अगेन 5 के टेबल में, 5 2s are 10, अगेन 2 के टेबल में. सो यू विल गेट 5 into 5 into 2. ओके, 5 अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आके 1 बार हो जाएगा, 5 root 2 मिल जाएगा. ओके, कौन से 2 छोटे नंबर्स है? 3 root 5 and 5 root 2. सो इफ यू डू, इन दोनों को ऐड कर दो, डिस्टेंस LM प्लस, एक्चुअली लेट मी कीप माय टेक्स्ट बुक्स डाउन. ओके, डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस LN कितना हो गया? 3 root 5 प्लस 5 root 2. इसको तुम ऐड कर सकते हो क्या? इट्स लाइक सेइंग 3x प्लस 5y को ऐड करो. इसको ऐड करके तुम कुछ लिख नहीं सकते. ओके, तो इसको तुम्हें वैसे के वैसे रखना पड़ेगा. बट इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 65 आएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 65 डेफिनेटली नहीं आएगा. ओके, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65. नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? इक्वल टू लिखना है और फिर उसको स्लैश मार देना है. तो दिस इज नॉट इक्वल टू 65, राइट? हेंस यू विल राइट डिस्टेंस LM plus distance LN is not equal to distance MN. Okay, and hence you will write final answer. Final answer क्या होगा? क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. ओके, so you will write points L M N are not collinear. Okay, that will be your final answer, and put the final answer in pencil box. That's your final answer. So just check whether you have got the same answer or not.
जस्ट चेक whether you have written the last part correctly. लास्ट पार्ट करेक्टली लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम लोग को काफी प्रैक्टिस हो चुकी है अभी, राइट, कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो ये लास्ट पार्ट लिखना सीख लो. सो फर्स्ट सम वी हैव solved completely by your, I mean first sum I have completely solved for you all. Second sum half of it you all have solved, and the remaining things I have clarified and we have discussed and we have solved this second sum together. So दो sums हो गए, अभी जो बचे हुए दो sums है वो तुम्हें खुद से solve करना है. Okay, so the remaining two sums are practice questions for you all. So again, when you submit notes for this particular learning session, I should have 6 sums from question number 1, 4 sums from question number 2. Okay, and if you are able to solve those practice questions correctly, then you can say that you have achieved today's learning session. तुम्हें 2 points के बीच में distance correctly निकालने आ रहा है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके, और 3 points कोलिनियर है या नहीं है वो तुम्हें बताने सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, that you can check using the practice questions, remaining practice questions. Okay, so that is it for this learning session. I hope you understood everything and it's just a matter of practice. Okay, अगर तुम जितने ज्यादा sums practice करोगे उतना easy लगने लगेगा. You have to just टेक केयर कि तुम x1 y1 ठीक से ले लो, x2 y2 ठीक से ले लो, किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, फर्क नहीं पड़ता. बट जब तुम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसमें काफी केयरफुली सब्स्टिट्यूट करना है. माइनस साइन है तो उसको अलग ब्रैकेट देना है, माइनस इंटू माइनस कहाँ पे प्लस हो रहा है उसका ध्यान देना है. इफ दैट यू टेक केयर ऑफ एंड इफ यू नो हाउ टू फैक्टराइज थिंग्स, तुम स्क्वायर रूट भी अच्छे से निकाल सकते हो, देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. ओके, इट्स वेरी सिंपल. द इंटायर चैप्टर टू बी ऑनेस्ट इज वेरी सिंपल. थोड़ा सा कैलकुलेशंस का अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो गया, स्पीड इंक्रीज हो गया, यू विल स्कोर वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन बोर्ड एग्जाम. ओके, so that is it for this learning session. We'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.